Hi Nitya, congratulations. This was your first Asian Para Games campaign and you bagged 3 bronze medals. So how does it feel and how do you look back at your performance in this one? First of all, thank you for asking me this. And yeah, this was my first Asian Games, and I'm really happy with my performance. But I was expecting more, but still, this was my best which I can give out here. All my 3 medals are counted in India's total number of medals. So I was feeling very happy to give my part to making our country proud. I want to thank my coach Gaurav Khanna sir for helping me to reach till here, and he was all the way supporting me till I get the medal. So I'm really happy and proud to be here in China. Jai Hind. And as you said, you have contributed to India's medal tally. This was a historic campaign for India, 100 plus medals. So how does it feel to be a part of the history? Yeah, it really feels very happy. Actually, we have come out equally to able-bodied athletes. So where like we don't get importance like able-bodied athletes, but still now we have also come up equal to them. So it is really a proud moment to all our para athletes who have come all over here to China, and we have given all our best. And yeah, this is what we can. And who do you dedicate these medals to? This medal I dedicate to our country, India, of course. I wanted to achieve this from the day I started my game. The day I started entering court, I wanted to achieve something for our country. So of course, I am dedicating all my medals to our country. And what's next? What's the next plans? So next upcoming we have World Championship and Paris 2024 Paralympics. So I will be heading towards these 2 bigger tournaments, and I will practice more, train good. I will be fit physically, mentally, and diet-wise I have to be concentrate more. So of course I will improve my skills and I will give gold colors over there. And as you mentioned about mental fitness also, so do you think do you do anything extra for that to keep yourself mentally fit? It's like I want to keep my surroundings happy, so I'm surrounded by happy people in Lucknow. So where we are like family, we are not athletes from different states. Nothing is there. We are from India and we are together as a family over there. So yeah, they really help me to keep me mentally fit, and they are the reason to boost my energy. And yeah, I thank them. They also have a big part behind me to help me in getting these medals. And have you thought of any celebrations? How would you celebrate? Celebration, yeah, we have Japan next week, so I have to be prepared for that also. So yes, we will celebrate together after Japan. And last one, a message for the fans back at home. Yeah, back at home, everyone are very happy, and like expectations were more, but still I gave my best. So I just want to thank them so much for supporting this match, and thank you. And thank you and congratulations. Thank you, Jay. Congratulations, Mandeep. First time in the Asian Para Games and 2 medals. So how does it feel to be a part of this historic campaign? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और ये मेरा पहला पैरा एशियन गेम्स है, और इसमें पार्टिसिपेशन करके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है इन फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, सिंगल्स में और वुमेंस डबल्स में। आई होप कि मैं आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी इससे भी अच्छा करूँ। ऑब्वियसली आप करेंगे, पर आपकी बैक स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप आर्म रेसलिंग खेलती थी, आर्म रेसलिंग में नेशनल चैंपियन भी रही है, वहाँ से बैडमिंटन कैसे आना हुआ? जैसे आप बता रहे कि पहले मैं आर्म रेसलिंग करती थी, और मैं एबल बॉडी के साथ खेलती थी, और उसमें मैं अकेली पैरा एथलीट थी, और मेरे को एबल बॉडी के साथ कम्पीट करना पड़ता था स्टिल। बट मैं 3 टाइम्स मैं नेशनल चैम्पियन रही थी। और उसके बाद मेरे को पता चला कि पैरा बैडमिंटन करके गेम है, और उसमें खाली पैरा प्लेयर्स खेलते हैं, और
और हमारे यहाँ से मनोज भैया हैं, वो उस टाइम वर्ल्ड रैंकिंग 1 थे और सेम कैटेगरी, मेरी कैटेगरी SL3 में। जब मैं उनसे मिली तो मेरे को भी था कि मेरे को भी बैडमिंटन में आना है और मेरे को भी वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। So, अभी तो आप वर्ल्ड नंबर 1 हो। हाँ जी, रिसेंटली मैं अभी यूरोपियन के बाद मैं अभी वर्ल्ड रैंक 3 पे थी, उससे पहले वर्ल्ड रैंक 1। होप सो अभी मेरी रैंक सो बैडमिंटन शुरू कैसे हुआ? बैडमिंटन मैंने 2018 में स्टार्ट किया था Okay. और 2018 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था वाराणसी में और वहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू रही और आज मैं एशियन गेम्स एंड पहला इंटरनेशनल आई थिंक उगांडा में, या फर्स्ट इन थाईलैंड में मेरा मेडल नहीं था। एंड देन दुबई, वहाँ पर भी मेरा मेडल है। उगांडा में मेडल आया या था। युगांडा इज माय फर्स्ट इंटरनेशनल। सो वहाँ से यहाँ तक का जर्नी काफ़ी कैसा लगता है अभी जब व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी? या उससे पहले मैं इंटरनेशनल सिर्फ इसलिए नहीं खेल पाती थी क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। और आपको पता है कि जब इंटरनेशनल खेलना होता है तो उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए रहते हैं। और उसके बाद मैं जब लखनऊ आई, मेरे मिस्टर गौरव खन्ना कोच हैं, मैं उनके पास आई तो मेरे को वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली, इवन प्रैक्टिस, हर एक चीज़ के लिए। और जब मैं वहाँ पर आई और मेरा युगांडा में गोल्ड आया, उसके बाद मेरे को स्पॉन्सर मिल गया वेल्सपन। अभी वेल्सपन मेरे को स्पॉन्सर करता है। और उसके बाद सारे टूर्नामेंट्स खेले और मेरे को अच्छी प्रैक्टिस मिली और सर की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये बोलना चाहूँगी। बिकॉज सर हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमको हर एक फैसिलिटीज़ मिलती है उनकी एकेडमी में कि हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ पर। सो ये मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स माय कोच मिस्टर गौरव खन्ना एंड माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स आल्सो, दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड मिस्टर अबू भैया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक बात और कि व्हेन यू लुक एट PM मोदी ट्वीटिंग अबाउट द एथलीट्स, सो हर वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज ट्वीटिंग एंड कंग्रेचुलेटिंग द एथलीट्स, हाउ डज इट फील? या व्हेन आई सॉ, जब मैंने वो देखा कि सर ने मेरे लिए ट्वीट किया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो एक हर एक प्लेयर का सपना होता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके लिए ट्वीट करें या उनके लिए कुछ विशेस भेजें या उनसे मिलें। तो जब मैंने वो देखा था तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी वो देखने के बाद, मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मैंने अपने घर पे सबको भेजा, सब लोग बहुत खुश थे वो चीज़ देख के। और मैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनकी वजह से भी आज जो पैराथलीट इतना अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी सर का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सो आपको लगता है कि अभी सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस भी आ रही है पैरा एथलीट और एबल बॉडी एथलीट में भी? यस, पहले पैरा एथलीट बहुत कम थे और अभी आप देखेंगे तो हर एक स्पोर्ट्स में और हर एक कैटेगरी में इतना टफ कंपटीशन होता जा रहा है। मैं यही बोलूँगी आने वाले टाइम में पैरा एथलीट बहुत अच्छा करेंगे। बहुत ही बढ़िया। आखिरी 2 सवाल, घर में बात हुआ सेलिब्रेशन का, कुछ सोचे? अभी तो ज़्यादा कुछ मेरी बात नहीं हुई है क्योंकि अभी यहाँ से जाने के बाद ही मेरा जापान टूर्नामेंट है। 3-4 डेज रहेंगे, फिर उसके बाद हमको जापान के लिए निकलना है और वो तो मेरे को लगता नहीं मैं अभी घर जा पाऊँगी, बट जापान से आने के बाद मैं घर जाऊँगी। सो जापान के बाद पेरिस का भी सोचा है? हाँ जी, कोशिश पूरी यही है कि मैं पेरिस के लिए क्वालिफाई करूं और अपनी कंट्री को इससे बेटर गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड मेडल डेडिकेट। गोल्ड बिल्कुल। एंड फाइनल मैसेज फॉर द फैंस बैक एट होम? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, जितने भी आने वाले पैरा एथलीट्स हैं वो कभी भी अपनी हिम्मत ना हारें और अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें और वो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।